Hello students, welcome to this session from Vedantu. My name is Abhilash and I'm your master teacher here in chemistry in Vedantu, and what we are going to do right now is we are going to look at mole concept chapter with a specific interest in JEE Mains, right? So this series that we have is what we call as Sprint 2.0. If you remember, in January when we had our first leg of JEE Mains, we had done a similar kind of series. We are continuing with that for the second leg of JEE Mains as well, and this is me presenting a particular chapter out of these. Paul sir, Saurav sir and me, we are handling chemistry topics as far as JEE Mains preparation is concerned, and in this Sprint 2.0 a few of the topics will be taken by me, specifically because I handle physical chemistry chapters, right? So what are we handling today? We are handling mole concept today. Right. So mole concept, in this I have included also the redox Wally questions. As far as the flow of this particular presentation, today's video is concerned, what I have looked at is I have looked at like all the questions related to mole that can be picked up from JEE first leg in 2019, and I have included some other questions from my end towards the end, so which will like kind of help you revise some of the topics that are involved with this particular chapter. Right? So what exactly are we doing here? So this is Sprint 2.0. You have already seen some of the videos out of these, like this particular slides. These slides tell you about the sequence of different videos that are being uploaded on YouTube. These will tell you about how you can like expect the different chapters to come through as far as Sprint 2.0 is concerned. A lot of students during Sprint 1 also has approached us to giving us specific suggestions about the toughness level of questions, the kind of questions that come across, previous year's questions also, some of them had to be handled. Based on that, we have like made this Sprint 2.0 where we will be handling different chapters, different people, different teachers will be handling different chapters, and as far as where are we are at mole concept, right? So between the three of us, we will be taking most of these topics, and they will probably cover more or less whatever is required by you, at least on a mains level, right? So once we are done with our mains preparation, once you are ready for giving your JEE advanced, we will be coming back with more, right? A similar kind of session like Sprint for your JEE advanced as well. But point being that for the time being, we want to help you as much as we can for your JEE Mains, right? Now this tells you about the timetable per se. I mean the different topics, when are they going to be done for you. This is physics, chemistry and maths, and what is going to really help you, right? So something that is really going to help you is the Vedantu Doubts app. Right? So Vedantu Doubts app is something that we created for the students so that they can easily access a lot of our content and like get their doubts really easily cleared up, right? So this is a venture that the Vedantu has like put out for their students, for everybody out there whoever has a doubt, right? So we can help you out. Like as a student, one of the biggest problems that most commonly that you face is that you have some doubts, you want to approach somebody and get it sorted out, but it gets really difficult for you to find the kind of solution, the right kind of solution, and like in a timely fashion also. I mean, like if you have a doubt right now, you can't get it cleared after 2 months. That doesn't help you, right? So this app is something that will really help change the way that you study, right? So it will really help you clear up your doubts as and when you have them, and that will really seriously improve your performance, right? So without any delay, jump right into this app and find out as many questions as you can and throw it at us. We assure you that we will be clearing these for you, right?
Yeah, so what can you say about the app? What is its speciality? Yeah, I mean, the daily sessions that we have, like one by one, like this small concept session, for example, all of these PDF format will be available in app study part, right? So if you want to access the mock tests that are there, mini mock tests on 1st and 3rd April, inside the same app, in the test part of the app, you can go through that, right? And in order to access the mega mock test on 4th April, in-app test, once again within the testing, we also have a lot of other features that we have lined up for you. As and when they are ready, we will be giving it out to you, right? So going further, like, share and subscribe our channel, as well as wherever you can find Vedantu, just go there, just go and explore whatever is, like, whatever is available for you. आपको जितना ज़्यादा मटेरियल आपको जहाँ से भी मिले, आपको अक्वायर कर लेना चाहिए. आपको नॉलेज इंक्रीज करने में ही फोकस करना है. Vedantu is really out there. I mean, like, look at all the comments that we receive, right? All the students who have like gone through Vedantu, which is almost like half of everybody who is preparing for JEE. Everybody feels that we are doing something really good for you, absolutely nice for you, by like giving out a lot of content that will help you prepare well, right? So we want to continue with that, and that is exactly why we have this Sprint 2.0 happening, right? Let's jump right into this particular session today, which is on mole concept, right? So as I told you, first what I'll deal with is like questions that came up in 2019 JEE Mains first, right? This will like kind of set up tell you what is the toughness level that you can expect from this chapter. Specifically इसी साल के questions हैं, तो you can obviously understand कि इसमें क्या क्या आप expect कर सकते हो, कितना variation, right? तो what I noticed personally is that mole concept के questions ऐसे लल्लू क्वेश्चंस टाइप्स है, जो दिए हुए जाते हैं टाइप्स है, कि मतलब आपको तो इसका तो आना ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है 2019 में जो शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सके, राइट? बट दैट सेड, आप एक क्वेश्चन भी मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपल है, सारे के सारे लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट? सो दीज आर लाइक द मार्क्स दैट यू कांट अफोर्ड टू मिस. First question, for the following, okay, mind you, there were like different phase, I mean different days when these papers were conducted, so there are multiple papers. तो यहाँ पे जैसे 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको दिख गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से ही भर के आए हैं इस बार, राइट? सो इट्स जस्ट दैट देयर आर डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट पेपर्स दैट वर देयर, एंड इन ईच ऑफ देम लाइक 1 or 2 questions were there, right? First question is for the reaction. See how simple these questions are, right? Somewhere down the line when we go to miscellaneous questions which are little bit on a higher level, ये समझ में आएगा कि ये सब क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली हैंडल कर लोगे अगर आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो अगर आप कर सकते हो तो, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 grams of C57H 110O6 इज, राइट? यहाँ पे इन लोगों ने रिएक्शन भी दिया हुआ था, बहुत सिंपल हो गया काम, राइट? अगर रिएक्शन नहीं दिया हुआ होता तो आपको जनरल फॉर्मूला की जरूरत पड़ती, which I am going to write down nonetheless, right? So आपके पास अगर एक जनरल रिएक्शन होता, right, of a substance which contains carbon, hydrogen and oxygen, the general reaction is CXHYOZ X plus Y by 4 minus Z by 2 O2. So yeah, this is the general expression, general reaction that you can write for the combustion of an element containing carbon, hydrogen and oxygen. CXHYOZ plus X plus Y by 4 minus Z by 2 O2 giving you XCO2 plus Y by 2 H2. But yeah, thankfully यहाँ पे reaction दिया हुआ था, बहुत बढ़िया. तो 2C57H 110O6 plus 163O2 giving you 114 CO2 plus 110 H2. This is what is given to you. अब इसमें से आपको निकालना है कि अगर इसका 445 ग्राम्स है इस सब्सटेंस का, तो आपको पानी के कितने ग्राम्स मिलेंगे, राइट? सिंपल क्वेश्चन है. आई एम श्योर दैट यू माइट हैव ऑलरेडी डन दिस. I'm sure you have seen this reaction too. I'm sure answer मिल गया होगा अब तक. Let's go to the solution.
So yeah, what is given, अब इसको just looking at the balance reaction you can say mass analysis से solve हो जाएगा. 2 मोल इसका है, ठीक है, इसका molecular weight निकालोगे तो ये आएगा 890, right? So 890 into 2 grams of this substance is going to give you 110 into 18 grams of water. मास एनालिसिस है, बैलेंस रिएक्शन देखिए, मास और मास में डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया. इसमें से आपको अगर 445 ग्राम है तो कितना मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो 445 विल गिव यू समथिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड हो गया, तो 445 इंटू 110 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 890 विच इज 490 ग्राम. सिंपल क्वेश्चन, मास एनालिसिस बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन था. Let's go to the next question. Again, ये सारे डिफरेंट पेपर्स पे थे, बट जो भी, राइट? तो द अमाउंट ऑफ शुगर Ce12H22O11 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 liters ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन. सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? मतलब मोलारिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको बस वेट ऑफ सोल्यूट पूछा हुआ है. सिंपल क्वेश्चन है. क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा, राइट? सो आई एम श्योर यू माइट हैव ऑलरेडी फिनिश दिस. 2 liters 0.1 मोलर मतलब 0.2 मोल्स हो गया, 0.2 मोल्स, और इसका वेट 342 पता ही है, 342 मॉलिक्यूलर वेट इंटू 0.2 will give you 68.4 grams, which is obviously the solution, right? So number of moles is molarity into volume, which is 0.2 moles. 0.2 moles का weight क्या होगा वो पूछा हुआ है indirectly आपको, 68.4 gram, right? Next question. In the reaction of oxalate with permanganate in acidic medium, the number of electrons involved in producing one molecule of CO2 is, right? तो आपको एक molecule CO2 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, this is what is asked, ठीक है? Thing to understand, इसको बैलेंस करके आप कर सकते हो, राइट? बैलेंस करके आप देख सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, कितना मोल CO2 बन रहा है, उससे आप निकाल सकते हो. बट कॉमन सेंस ये है टू अंडरस्टैंड कि इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ समथिंग, बेसिकली दे आर आस्किंग यू n factor. Understand this, right? So n factor is the number of moles of electrons associated with 1 mole of a substance in a redox reaction, right? तो यहाँ पे आपके पास परमैंगनेट है, MnO4 है, MnO4 माइनस है, बेसिकली इन एसिडिक मीडियम है, उसका n factor वगैरह 5 होता है, वो सब तो पता है. इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, अब ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन है, राइट? तो ऑक्सलेट आपके पास C2O4 2 नेगेटिव है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का 3 होता है, और वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है. इन कार्बन डाइऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 4, राइट? सो बेसिकली यू आर गोइंग फ्रॉम एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 to +4. नाउ n factor is defined as the number of electrons that are associated with one molecule of this, right? So if you look at the reverse direction, CO2 to C2O4 2 negative, CO2 में +4 है, C2O4 2 negative में +3 है, change is 1. तो change in oxidation state per molecule is what you call as n factor. तो CO2 के लिए n factor is 1, right? Other way around, उधर से इधर देखें तो इसका n factor आएगा 2, right? So इसमें आपके पास basically कार्बन 2 है, which is going from +3 to +4, तो इसका n factor है 2, यानी कि 2 electrons are associated with 1 unit of C2O4 2 negative. उससे आपको 2 CO2 मिलेगा, ऑब्वियसली कार्बन के एटम्स को बैलेंस करके, तो which means that 2 इलेक्ट्रॉन से आपको 2 CO2 मिलेगा, तो 1 से 1 मिलेगा, राइट? Other way around, what you could have done is to balance the reaction and then look at the number of molecules of carbon dioxide produced, look at the number of electrons involved, और उससे भी मिल सकता था. बट या simple method is to think of n factor, because understand that they have just asked you n factor and directly solve it based on that knowledge. Next question. 25 ml of a given HCl solution requires 30 ml of 0.1 molar sodium carbonate solution. What is the volume of this HCl required to titrate 30 ml of 0.2 molar NaOH solution? समझ रहे हो? Once again simple question. आपको ये HCl का जो है concentration दिया हुआ नहीं है, but HCl volume is given and sodium carbonate के साथ reaction है, that is given, right? So and then now you are using this same HCl and you have to find the volume required to react with 30 ml of 0.2 molar NaOH, right? तो सबसे पहले आप वो गिवन डेटा से मोलारिटी निकालो HCl का, और फिर उसको यूज करके अगले वाले में वॉल्यूम निकालो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल
सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा तो Na2CO3 का n फैक्टर इज 2, राइट। न्यूट्रलाइजेशन ही है, एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड वर्सेस एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, वो भी वीक डाइप्रोटिक एसिड का सॉल्ट के साथ रिएक्शन है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड विल मेक इट्स ओन सॉल्ट एंड डिस्प्लेस द वीक एसिड H2CO3 CO2 जो भी, राइट। तो आपके पास ये पहले वाला जो है उसमें n फैक्टर सोडियम कार्बोनेट का 2 है, तो 25 इंटू मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू 1, HCl का n फैक्टर तो 1 है, इक्वल टू 30 इंटू 0.1 इंटू 2, विच मीन्स द मोलैरिटी इज 6/25 मोलर, right? Now in the second reaction what we can say is volume into 6/25, molarity तो मिल गया, volume into 6/25 into 1, n factor तो अभी भी 1 नहीं है, should be equal to 30 into 0.2 into 1, NaOH का factor तो 1 नहीं है, इससे आपको V मिलेगा 25 ml। Once again simple question, दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन ही थे, ऐसे भी नहीं कि मतलब ऐसे पहले वाले में कुछ रेडॉक्स है और दूसरे वाले में कुछ आपको न्यूट्रलाइजेशन टाइप्स दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप वन वे और द अदर। बेसिकली आइडिया इज टू गेट मोलैरिटी ऑफ HCl फर्स्ट एंड देन यूज इट इन द सेकंड इक्वेशन टू सेकंड रिएक्शन टू गेट द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 milligram effervescent tablet containing sodium bicarbonate and oxalic acid releases 0.25 ml of CO2 at a temperature of 298.15 Kelvin, right, and a pressure of 1 bar. If molar volume of CO2 at this conditions is 25 liters, what is the percentage of sodium carbonate in each tablet? राइट, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, राइट, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड्स, राइट। अब सोडियम वंस अगेन NaHCO3 क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, राइट, बेसिक सॉल्ट है जो कि एम्फीप्रोटिक भी है, मतलब H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है। इसमें आप अगर कोई भी एसिड डालोगे तो इसमें से CO2 निकाल देगा, बेसिकली वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा कोई भी एसिड। तो मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी एबल टू डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम NaHCO3, राइट। मोस्ट ऑफ दीज आर लाइक स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, तो ये डिस्प्लेस कर देगा CO2 फ्रॉम NaHCO3। तो आपके पास हर NaHCO3 से एक CO2 आपको मिलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 आर सेम, दैट इज द लॉजिक दैट वील यूज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के लिए क्या है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.25 ml है और दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम 25 लीटर्स है, यानी कि एक मोल का वॉल्यूम 25 लीटर है। तो ये 0.25 ml में कितना होगा, यूनिटरी मेथड है, सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट्स carboxylic acid would liberate 1 mole of CO2 from 1 mole of NaHCO3. So number of moles of NaHCO3 equal to number of moles of CO2 equal to 0.25 divided by 25 liters, 0.25 ml divided by 25 liters, which is 10 to power minus 5 moles. तो आपके पास 10 to power minus 5 moles है NaHCO3 का, वेट मिल जाएगा 84 ग्राम इंटू 10 टू पावर माइनस 5, मतलब 0.84 मिलीग्राम, 0.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, तो 0.84 मिलीग्राम है, कितने में से, 10 मिलीग्राम में से, तो परसेंटेज क्या होगा, 0.84 अपॉन 10 इंटू 100, 8.4%। वंस अगेन सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही क्वेश्चन है। Next question, 8 gram of NaOH is dissolved in 18 grams of water. Mole fraction of NaOH in the solution and molality of the solution respectively are. Of course you can understand, ये कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको ये सिंपल थ्रो अवे क्वेश्चन नहीं है जो आपको करना ही करना है, मीन्स तो करना ही नहीं, राइट। सो आपको यहाँ पे 8 ग्राम है NaOH का, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 40, 0.2, और 18 ग्राम्स वाटर है तो मतलब 1 मोल ही है, तो आपका 0.2 उसका है और 1 मोल इसका है, तो 0.2 अपॉन 1.2 हो गया मोल फ्रैक्शन। बाकी मोलालिटी चाहिए, मोलालिटी के लिए 0.2 अपॉन 18 इंटू 1000, सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.2 और 1, मोल फ्रैक्शन आएगा 0.2 अपॉन 1.2 विच इज 1/6 विच इज 0.167 जो भी, राइट। मोलालिटी आएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, तो ये आया 11.11 मोलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of a sodium hydroxide solution. Similar टाइप का क्वेश्चन है, एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन टाइप्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दिया हुआ है, तो NaOH का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, राइट। टाइट्रेशन का बेसिक रूल है ये तो।
the amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution is. तो आपको 50 ml NaOH solution में कितना NaOH है ये निकालना है, राइट. तो सिंपल है, पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कंसेंट्रेशन आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट भी मिल जाएगा, राइट. So I guess the numbers given were like 1 gram. I mean these were the numbers I guess that were given. What suspicious था, 1 gram, 4 gram, 2 gram, 8 gram was probably the options, right? Yeah. So what exactly is happening here? पहले वाले में 50 into 0.5, right? ऑक्सैलिक एसिड का into 2. ऑक्सैलिक एसिड में क्या है? n factor is 2, right? तो into 2 should be equal to, that is equivalence of your acid, should be equal to equivalence of your base 25 into molarity into 1. इससे molarity आया 2 molar, right? So आपका NaOH जो है 2 molar solution है. अब नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ml क्या होगा? 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. 10 टू पावर माइनस 3 क्यों? ml में कन्वर्ट कर लिया, मतलब लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया ml से, फिर इंटू 2 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम गेव मी 0.1 मोल. तो 0.1 मोल NaOH है आपके पास, तो 0.1 मोल का वेट क्या होगा? 0.1 इंटू 44 ग्राम. Look at how simple these questions were, right? So these are like mostly and also like standard substances too, more or less. I mean like all the things that you commonly know of, all the reagents were like very very common, nothing extraordinary, nothing out of like you know out of the box where you just don't know what is happening. ऐसा कुछ भी नहीं था, right? Now let's look at some random questions also so that we can like you know go a little bit more deeper and then we'll leave it there, right? So this is our first session on mole concept. We'll have more of these, right? More of these happening. Okay, first question. So 1 mole of Fe reacts completely with 0.65 moles of O2 to give a mixture of FeO and Fe2O3 only. The mole ratio of ferrous oxide to ferric oxide is, right? अब यहाँ पे क्या है, आपको POAC है बेसिकली, ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. आपको पता है कि 1 मोल Fe है आपके पास शुरुआत में, तो बाद में भी 1 मोल होगा. 0.65 मोल्स ऑफ O2 है, यानी कि 0.65 इंटू 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 1.3 मोल्स, राइट. 1 मोल Fe है, 1.3 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, या फिर 0.65 मोल O2 है. इससे आप कितना FeO Fe2O3 बना सकते हो, ये है, राइट. लेट्स से कि N1 और N2 है, ठीक है. तो N1 मोल्स है लेट्स से FeO के, और Fe2O3 के लेट्स से N2 है. तो N1 मोल्स में कितना हो गया? N1 ही हो गया Fe. N2 मोल Fe2O3 में 2 इंटू N2 हो गया Fe. तो टोटल Fe कितना हो गया? N1 प्लस 2N2, राइट. तो आपके पास बेसिकली N1 प्लस 2N2 Fe की बात करें, N1 प्लस 2N2, right? What are we assuming here? Let's just say कि N1 moles आपके पास हैं FeO के, और N2 moles let's say आपके पास हैं Fe2O3 के, right? तो N1 plus 2N2 हो गया आपके पास total moles of Fe which is given as 1, and number of moles of oxygen क्या हो गया? N1 में N1 ही होगा, और N1 plus 3N2 होगा. total oxygen should be equal to 1.3. सॉल्व करो, आपको N1 N2 मिल जाएगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको सीधा N2 दिख रहा है 0.3 है, और N1 आ गया आपके पास 0.4 है. तो आपको N2 0.3 है और राइट. तो 0.4 is to 0.3 यानी कि 4 is to 3 आ गया आपका N1 is to N2. I guess that is what is asked. Yeah, ferrous oxide to ferric oxide रेशियो चाहिए था. N1 आया 0.4, N2 आया 0.3, राइट. तो यहाँ पे कुछ रैंडमली लिया हुआ है P. वैसे लेट्स से कि FeO के नंबर ऑफ मोल्स P है, तो Fe2O3 के होंगे 1 माइनस P बाई 2. कॉमन सेंस है, राइट. टोटल 1 है, तो अगर P उधर चला गया तो 1 माइनस P इधर होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि Fe2O3 है. देन टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को 1.3 करके बस आंसर मिल जाएगा. P इधर होगा और 3 इंटू 1 माइनस P बाई 2 इधर होगा, दोनों मिला के 1.3 है. फ्रॉम दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ P. सेम स्टोरी, सेम टाइप, right? Next question is, what weight of nitric acid is needed to convert 5 gram of iodine into iodic acid according to this equation, right? So आपके पास 5 ग्राम आयोडीन है, और आपको ये पूछा होगा कि कितना HNO3 चाहिए होगा आपको HiO3 NO2 और H2 ये रिएक्शन के लिए, राइट. फॉर दैट ऑफकोर्स आप बैलेंस कर सकते हो. आप पहले ये एन फैक्टर वाले इक्वेलेंस इक्वेट करने वाले एंगल पे ही देख लो. तो नाइट्रोजन जो है +5 से +4 जा रहा है, राइट.
HNO3 में नाइट्रोजन +5 में, NO2 में +4 में है, तो यहाँ से इसका n फैक्टर आ गया 1, राइट। आयोडीन की अगर बात करें तो इट इज गोइंग फ्रॉम 0 to +5, राइट। तो HiO3 में आयोडीन इज इन +5, तो इसका I2 का n फैक्टर आ गया आपके पास 10, राइट। 0 से +5, 5 का चेंज है और 2 एटम है पर मॉलिक्यूल, तो टोटल n फैक्टर आएगा इसका 10। तो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का 127 इंटू 2 254, तो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 254 हो गया इक्विवेलेंस ऑफ आयोडीन, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इंटू 1। नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, वेट भी मिल जाएगा। क्लियर है? गोइंग इसी में आपके पास फ्रॉम दिस रिएक्शन आप ये बैलेंस करके देख सकते हो, भाई n फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। HNO3 का n फैक्टर 1 है और I2 का n फैक्टर 10 है, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग, राइट। सो 254 ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्स 10 इंटू HNO3 का 63 इंटू 10 630 ग्राम्स ऑफ HNO3, तो आपके पास 5 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए होगा? सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करोगे 12.4 मिल जाएगा, राइट। तो 630 इंटू 5 डिवाइड बाई 254, ये 5 डिवाइड बाई 254 क्या है? आप 50 कर दो कैंसिल करके, और फिर डिवाइड बाई 50 की जगह ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 630 इंटू 2 मतलब 1260 डिवाइड बाई 100 टाइप्स, तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 12.4 चलेगा, राइट। Now, equivalent weight of H3PO2 during the disproportionation into H3PO3 and PS3 will be, right? अब यहाँ पे बेसिकली फंडा ये है कि इक्वलेंट वेट आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड अप बाय n फैक्टर होता है, राइट। अब n फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करो, नॉर्मली क्या होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल लेते हैं अपन n फैक्टर, राइट, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन छोड़ के। बट डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों हो रहा है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 0 आएगा। तो वी डोंट define it like that. In redox reactions what we say is, in disproportionation specifically what we say is, look at oxidation or reduction and divide it by the number of moles, right, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास है बेसिकली H3PO2, राइट, H3PO2 है ओरिजिनली, और इस चीज में फॉस्फोरस का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहां से ये आपको दे रहा है H3PO3 जहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +3, और PH3 जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, राइट। तो अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग में मैं बता रहा हूँ, सुन लो एक बार, राइट। तो आपका ऑक्सीडेशन हाफ में देखा जाए तो जस्ट इग्नोर दिस रिएक्टेंट फॉर द टाइम बिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट द प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपके पास प्रोडक्ट में यहाँ पे एक +1 से +3 आया, राइट, तो देयर वाज एन इंक्रीमेंट बाय 2, राइट, ऑक्सीडेशन बाय 2। फिर ये प्रोडक्ट दूसरा जो अगर देखूं तो यहाँ पे इट हैज कम फ्रॉम +1 to -3, विच मीन्स दैट देयर इज अ रिडक्शन बाय 4, राइट। +1 से -3 तक गया मतलब रिडक्शन बाय 4। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, तो ये -4 रिडक्शन है, तो ये 2 बार होना पड़ेगा, तो यू कैन से दैट ये अब 2 मैं लिख दूंगा सामने, ताकि ये इंटू 2 करके इवेंचुअली इसका +4 ऑक्सीडेशन हो गया और इसका -4 रिडक्शन हो गया, तो दे बैलेंस ईच अदर आउट। अब टोटल फॉस्फोरस एटम्स इफ यू सी हाउ मेनी आर देयर, 3, तो आई विल राइट 3H3PO2। समझ में? तो दिस इज सपोज टू, आई मीन लाइक जस्ट कैलकुलेट nonetheless 9 हाइड्रोजन एटम्स, 3 phosphorus atoms, 6 oxygen atoms, 6 oxygen atoms, 9 hydrogen atoms and 3 phosphorus atom, बैलेंस हो गया, राइट। अब इसमें आपको n फैक्टर का क्या है, अब टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल करके इसको अगर मैं देखूं तो इसमें से जो 3 फॉस्फोरस एटम है उसमें से 2 का ऑक्सीडेशन हो गया और 1 का 4 का रिडक्शन हो गया, तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं है इन फैक्टर का, यहाँ पे यू जस्ट लुक एट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज 4, राइट, रिडक्शन इज बाय 4, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो बाय 4, तो इसका इन फैक्टर आएगा 4/3। टोटल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये 3 मॉलिक्यूल मिला के 4 का ऑक्सीडेशन भी था, 4 का रिडक्शन भी था, तो 4/3 इज द एन फैक्टर। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वेट जो है बाय डेफिनेशन विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 4/3, राइट, which means that it will be how much, 3m/4,
4, which is your B answer. Right? So just remember, when you have disproportionation reaction, we look at oxidation or reduction per molecule, and that will give me our n factor. In general, n factor का definition is average change in oxidation state per molecule. राइट, पर मॉलिक्यूल जो टोटल चेंज है. नॉर्मली क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही हो रहा होता है, तो दैट विल गिव यू अ डेफिनेट वैल्यू एज लॉन्ग एज यू हैव रेडॉक्स. बट डिस्प्रोपोर्शनेशन में ये दोनों कैंसिल आउट होता है, तो वी डिफाइन इट इन दिस वे. राइट, बैलेंस किया, एन फैक्टर आया आपके पास 4/3 और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 4/3 आपका आया 3m/4, विच वाज बी ऑप्शन. An element forms an oxide in which oxygen is 20% of the oxide by the weight. The equivalent weight of the given element will be. राइट, अब इसमें एक बहुत ही सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट. राइट, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, वन इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा फर्जी है बट पॉइंट ये है कि वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विल रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी अदर सब्सटेंस. ये है बेसिक डेफिनेशन. तो यू रिमेंबर कि लाइक इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट विल रिएक्ट विद और डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड सो ऑन. क्या फंडा है इसका, बेसिकली आपका ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8. क्लोरीन के लिए क्या आएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1. हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, 1.008 बाय 1, जो भी. राइट, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट बेसिकली ऐसा डिफाइंड है कि दैट वेट ऑफ सब्सटेंस दैट विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम एंड सो ऑन. तो यहां पे आपके पास 20% ऑक्सीजन बाय वेट दिया हुआ है, यानी कि 80 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज कंबाइनिंग विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट डज दैट टेल यू, व्हाट वेट डज कंबाइन विद 8 ग्राम, यही पता करना है हमें. तो हमारा इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा. By definition, equivalent weight of an element is the weight of the element that combines with or liberates one equivalent weight, यानी कि 8 grams of oxygen. यहाँ पे 20% oxygen means 80 grams combined with 20 grams. What weight will combine with 8 grams is the question. तो 80/20 into 8 किया, 32 ग्राम आया इसका इक्विवेलेंट वेट. सिंपल क्वेश्चन है. In a redox reaction, barium permanganate oxidizes K4FeCN6 potassium ferrocyanide into K plus में तो ऑक्सीडेशन नहीं है, पोटेशियम तो वैसे ही है +1 में, बाद में Fe3+ CO32- and NO3- ions in acidic medium. Right, so you have been given the end product of oxidation of potassium ferrocyanide using barium permanganate, right, where barium permanganate itself reduces into Mn2+. Then how many moles of barium permanganate will react with 1 mole of K4FeCN6. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस बेस्ड है. इक्विवेलेंस ऑफ वन सब्सटेंस इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ अदर सब्सटेंस टाइप्स. ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. राइट, तो इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, बेरियम परमैंगनेट. अब इसमें मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है. राइट, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा. अब देखो KMnO4 के लिए एन फैक्टर है 5. राइट, मैंगनीज जो है +2 में जा रहा है, +7 से +2, तो KMnO4 के लिए 5 है, लेकिन यहाँ पे 10 है. क्यों, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल जी होता है. तो ये MnO4 ट्वाइस है यहाँ पे, तो 2 मैंगनीज एटम है विच आर गोइंग फ्रॉम +7 टू +2, विच मीन्स द रिडक्शन बाय 5 फॉर 2 एटम्स. टोटल रिडक्शन आया आपके पास 10. राइट, तो बेरियम परमैंगनेट का एन फैक्टर 10 है. राइट, अब हाउ मेनी मोल्स इसका है ये पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी है इनटू 10 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ K4FeCN6. अब उसके लिए K4FeCN6 का एन फैक्टर जी होगा. तो व्हाट डिड आई टेल यू, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं, इसमें ये यूनिट अगर मैं देखूं, तो पोटेशियम की वजह से कोई चेंज नहीं है, पोटेशियम +1 में ही है, बाद में भी +1 है. आयन जो है आपका पहले +2 में है, बाद में इसका +3 में है. तो आयन की वजह से अगर एन फैक्टर की बात करें पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1+1 किसका है, टोटल चेंज चाहिए हमें पर यूनिट. एक Fe की वजह से एक का चेंज आया. अब CN6 में कार्बन जो है, राइट, सो CN- है, तो इसमें आपका कार्बन का
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन -3 है, कार्बन आपका +2 स्टेट में है, राइट। Cn माइनस है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों मिला के -1 आना चाहिए, तो आपका कार्बन जो है +2 है, नाइट्रोजन -3 है। कार्बन जो है +2 से राइट कहाँ जा रहा है, +4 जा रहा है CO3 2 माइनस में, तो कार्बन में +2 से +4 मतलब 2 का चेंज है। और कितने कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल या एक यूनिट में, 6 है, तो 6 into 2 will be the change due to carbon atoms alone, right? So which means that there is a change by 12 due to carbon, right? And nitrogen is going from -3 in Cn to NO3 माइनस है तो यहाँ पे +5 है, तो -3 से +5 मतलब 8 का चेंज है, लेकिन वो एक नाइट्रोजन एटम के लिए है। यहाँ पे आपके पास पर यूनिट पर मॉलिक्यूल जो भी, राइट, तो 6 नाइट्रोजन एटम्स आर देयर, तो 6 into 8 मतलब 48 का चेंज आ गया। तो टोटली इसमें 61 इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर यूनिट, विच मीन्स दैट एन फैक्टर इसका आ गया 61, राइट। अब दिख रहा है आपको 61 इंटू इसके नंबर मोल्स कितना दिया हुआ है, 1 मोल ही दिया हुआ है, तो 61 into 1 शुड बी इक्वल टू 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम पर मैग्नेट, कितना आएगा 6.1, राइट। सो आपका इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग, एन फैक्टर इसका आया 10 और K फॉर एफिशिएंसी का आया 61 और n नंबर ऑफ मोल्स इंटू 10 शुड बी इक्वल टू 1 इंटू 61, इससे n आया 6.1। तो 6.1 मोल्स ऑफ बेरियम परमैंगनेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ योर पोटेशियम फेरोसाइनाइड if these are the products and stuff. Next question. A 100 ml solution of ferrous oxalate and ferrous sulfate is completely oxidized by 60 ml of 0.02 molar KMnO4 in acidic medium. The resulting solution is then reduced by zinc and dilute HCl. The reduced solution is again oxidized by 40 ml of 0.02 molar KMnO4. Calculate the molarity of FeC2O4 and FeSO4 in the solution. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आई एम जस्ट पुटिंग इन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये बैक टाइट्रेशन टाइप के क्वेश्चन टाइप्स हैं। बेसिकली आपके पास आगे पीछे 2 बार टाइप से रिएक्शन कराया हुआ है। तो पहले आपके पास फेरस ऑक्सीलेट है, इसका ऑक्सीडेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो रिलीज हो जाएगा, Fe2+ से Fe3+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फेरस सल्फेट में भी सेम स्टोरी, Fe2+ से Fe3+ हो जाएगा, सल्फेट का कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये पहले ऑक्सीडेशन के बाद आप जिंक HCl यूज करके वापस रिड्यूस कर रहे हो, राइट, तो आपका जो Fe3+ है वो वापस Fe2+ में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब वापस से यू आर यूजिंग KMnO4 एंड यू आर ऑक्सीडाइजिंग दिस Fe2+ वंस अगेन इनटू Fe3+। बेस्ड ऑन दिस कैन यू फाइंड आउट, अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है पहली बार 60 ml और अभी 40 ml का क्या फंडा है, क्योंकि पहले C2O4 2- was also there which was getting oxidized to CO2, उसकी वजह से एक्स्ट्रा लग गया बेसिकली, है ना। तो आपके पास सॉल्यूशन में लेट्स जस्ट से दैट द मोलैरिटी ऑफ FeC2O4 is X and let's just say that molarity of FeSO4 is Y, right? तो आपके पास 100 ml है, तो n फैक्टर ऑफ FeC2O4 क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल पर यूनिट होता है, तो आयन +2 से +3 जाएगा, 1 का चेंज, कार्बन +3 से +4 जाएगा, 1 का चेंज, लेकिन 2 कार्बन एटम पर यूनिट है, तो 3 का मतलब 2 का चेंज कार्बन की वजह से, 1 आयन की वजह से, टोटल चेंज आया 3 n फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। एन फैक्टर ऑफ FeSO4 क्या होगा 1, क्योंकि Fe2+ से Fe3+ जाने वाला और कुछ चेंज है भी नहीं। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में 5 होता है, एन फैक्टर पता ही है, राइट। तो 100 into X विल गिव यू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ FeC2O4 into 3 एन फैक्टर will give you milli equivalents of FeC2 plus 100Y will give you number of millimoles of FeSO4 into 1 आ गया इन फैक्टर उसका, तो टोटल आया आपके पास दिस शुड बी इक्वल टू 60 into 0.02 into 5। ये मिली इक्वलेंस है KMnO4 का, 60 ml है, 0.02 मोलर है और into 5 एन फैक्टर उसका आ गया, तो ये मिली इक्वलेंस दोनों को इक्वेट किया। अब HCl converts Fe3+ back to Fe2+ and Fe2+ once again gets oxidized by MnO4-। इस बार 100 into X into 1 ही होगा, समझ में आएगी। 100X is the number of moles of Fe2+ from ferrous oxalate। इस बार ऑक्सीलेट वाला पार्ट है ही नहीं, तो इसका एन फैक्टर भी 1 है,
फेरस सल्फेट से वापस जो Fe3+ से जो वापस Fe2+ बना, उसका भी इनफैक्टर 1 नहीं होगा इस बार, तो 100Y होगा नंबर ऑफ मोल्स उसका, तो 100x + 100Y × 1 इज 40 × 0.02 × 5, राइट। ये 100x क्या है, नंबर ऑफ Fe2+ इन फेरस ऑक्सलेट, 100Y क्या है, नंबर ऑफ Fe2+ इन फेरस सल्फेट। ये दोनों फेरिक में कन्वर्ट हो गया था, बट वापस आपने जिंक HCl यूज करके उसको रिड्यूस करके वापस Fe2+ पे ले आए हो और अब KMnO4 से वापस ऑक्सीडाइज कर रहे हो, है ना। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू y का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल, राइट, सिंपल। Let's look at one more question, right? So when 100 ml of a H2O2 sample reacts completely with a Ki solution, the liberated iodine required 25 ml of sodium thiosulfate in basic medium, where thiosulfate ions are oxidized to sulfate ions. What is the volume strength of H2O2 solution used? ठीक है, तो यहाँ पे what is given is that वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज समथिंग दैट यू शुड नो इन द फर्स्ट प्लेस। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये फंडा है कि आपके पास अगर H2O2 सॉल्यूशन है, जो भी मोलैरिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसका 1 लीटर लेके इफ आई अलाउ इट टू ऑटो ऑक्सीडाइज, आई मीन जो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, उससे जितने आपके पास ऑक्सीजन आएगा एट STP, उसको उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, राइट। तो आपके पास अगर 1 मोलर है H2O2 का, तो एक H2O2 से आपको ½ मोल O2 मिलता है, 1 मोल H2O मिलता है, ये तो बताइए। तो आपके पास अगर 1 मोल होता तो आधा मोल ऑक्सीजन मिलता, तो 1 मोलर H2O2 से आपको ½ मोल O2 मिलता है, यानी कि 11.2 लीटर्स मिलता। तो 1 मोलर H2O2 is also called 11.2 वॉल्यूम H2O2। तो आपको अगर मोलैरिटी चाहिए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड अप बाय 11.2 करो, आपको मोलैरिटी मिल जाए। या फिर अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए तो मोलैरिटी इंटू 11.2 कर लो, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इवेंचुअली मोलैरिटी चाहिए H2O2 का, ठीक है। क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं? पहले what they are saying is H2O2 is oxidizing your Ki and it is converting it into I2, and what they have said is that I2 is reacting with thiosulfate and tetrathionate नहीं है by the way, and it is getting converted in basic medium into I- and SO4 दिया हुआ है। Now let's just say that the number of moles of H2O2 is P, then moles of I2 is Q, let's say, and moles of thiosulfate is R, let's just say, right? तो in first reaction 2 into P, 2 क्या है, मतलब आपका ऑक्सीजन जो है -1 से -1 से -2 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर आएगा 2, राइट। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों H2O2 का n फैक्टर इज 2, तो ये इसका 2 into P will be equivalence of H2O2 should be equal to 2 into Q। अब ये I2 का Q मोल्स है, I2 का n फैक्टर क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में देखो 0 से -1 जा रहा है और 2 एटम है पर I2, तो आपका n फैक्टर आयोडीन का भी 2 ही है, तो इक्वल टू 2 into Q और P इक्वल टू Q, यानी कि n फैक्टर भी दोनों का सेम है, तो मोल्स भी दोनों का सेम आएगा, राइट। तो 1 मोल H2O2 से 1 मोल I2 मिलेगा टाइप्स का। अब I2 + H2O3 इस वाले में आयोडीन का क्या n फैक्टर, I2 से I- जा रहा है 0 से -1, तो n फैक्टर इसका 2 आया। H2O3 में आपका सल्फर जो है, राइट, सल्फर इन योर हाइपो जो सोडियम थायोसल्फेट इज गोइंग फ्रॉम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस, यहाँ पे +2 है और यहाँ से ये +6 जा रहा है, राइट। तो इसका n फैक्टर अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि एक सल्फर का चेंज जो है +2 से +6 4 का है, और इसमें पर यूनिट जो है 2 सल्फर है, तो इसका n फैक्टर इज 8। तो व्हाट यू कैन से इज दैट Q into 2 शुड बी इक्वल टू R into 8, राइट। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स H2O3 का R ले ले तो into 8 शुड बी इक्वल टू Q into 2, राइट। और अब यहाँ पे आपको 25 ml 1 मोलर Na2H2O3 दिया हुआ है, तो आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स, R के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो आपको Q मिल जाएगा, P मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मोलैरिटी चाहिए आपको, अब ये Q इक्वल टू P है, P इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 दैट इज देयर इन 100 ml, राइट। तो इंटू 10 होगा नंबर ऑफ मोल्स दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, विच इज व्हाट यू कॉल एज मोलैरिटी। तो आपके पास ये जो मोलैरिटी ऑफ H2O2 है, अब Q आया था आपके पास 0.1,
इंटू 10 मतलब 1 ही हो गया मोलैरिटी। तो 1 मोलर सोल्यूशन है H2O2 का, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया 11.2 वॉल्यूम। सीधा मल्टीप्लाई करना है, मोलैरिटी इंटू 11.2 विल गिव यू दी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ योर H2O2। क्लियर है, राइट? तो ये ऐसे टाइप्स के आयोडीन बेस्ड आइडियोमेट्रिक वाले टाइट्रेशंस भी बहुत कॉमनली सीन है। आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओनली डिफरेंस वाज नॉर्मली व्हाट यू एंड अप सीइंग इज दैट सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम टेट्राथायोनाइड, राइट? Na2S4O6। यहाँ पे इन लोगों ने स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि सल्फेट बन रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली एन फैक्टर चेंज हो गया, वरना एन फैक्टर सोडियम थायोसल्फेट का 1 नहीं आता है, 2 से 2.5 जा रहा होता है, 0.5 का चेंज है और पर मॉलिक्यूल दो सल्फर एटम है, तो इसका इन फैक्टर नॉर्मली 1 आता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इन लोगों ने दिया हुआ है कि सल्फेट है, तो फिर अकॉर्डिंगली वी हैड टू चेंज इट, राइट? वंस अगेन याद रखना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? मोलैरिटी इंटू 11.2, राइट? सो व्हाट वी हैव सीन टुडे is like continuing with sprint session for the next leg of our JEE Mains. What we have seen so far, what we have done today is specifically this chapter called mole concept and usse related questions, right? So what we looked at is previous this like leg के questions related to mole concept, and we also looked at some random examples just to clarify your idea about n factor and all a bit more, right? We'll continue with more of these. Keep watching this space and don't forget to get your Vedantu Doubts app and see to it that you get all your doubts all there. This will be a crazy new change for you. Best of luck. Once again, this is Abhilash signing off on behalf of Vedantu. Best of luck for your JEE Mains and all the other exams that you plan to give.